Hi everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वन शॉट फाइनल रिविजन सीरीज में, जहाँ पे हम करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. Now this chapter doesn't contain a lot of things, so it will not be a huge problem for us. Some importance of manufacturing, industrial location कैसे determine होती है, agro based और mineral based industries को भी discuss कर लेंगे. The pollution and the degradation that is caused by industries is an important topic, followed by the control measures and the conservation methods. यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं. इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ से भी पूछे जाते हैं. तो इन सारी चीज़ों को हम आज कर लेंगे कवर, ताकि इस चैप्टर के इस वन शॉट सेशन को जब आप देखो एंड व्हेन यू गो एंड अपीयर फॉर योर एग्जाम, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स बिफोर. After watching this session, we'll cover all the important topics very much in detail, but of course keeping it short and crisp as well, to ensure that your 100% revision of this portion of this chapter is done. So let's get started on that note, but before I do, I want to have a quick lens moment of the day. So बच्चों, अभी जब एग्ज़ाम है चल रहे हैं, तो अगर किसी एक टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है, या पढ़ते पढ़ते कहीं कुछ ऐसा आ जाता है एलिमेंट जिसमें हमें लगता है कि हम अटक गए, दिस आई वांट टू रिवाइज, it gets very difficult to go ahead and find a video which is relevant and figure out something that you actually want to do, and it's very time taking, and time is money right now, right? So how do we ensure that we are able to find whatever we want to find, but also not put in a lot of time and efforts, because we want to save time and ensure that we're not just letting it pass through our hands. So just download the Imbibe Lens app, give access to your camera, take a picture like I'm doing right now. The moment you take the picture, the important things will get highlighted on its own, and it will pop up as a keyword over here, as you can see. Now let's say industrial location is what I want to learn about. I clicked on industrial location and a video just pops up over here. If there are more suggestions will come. So that is how amazing this entire thing is, and it just took me maybe 15-20 seconds, 30 seconds, 40 seconds at max to do this entire process, but I had whatever I wanted to specifically for that topic right on my screen, which I could just start learning with. And these are small snippet videos which also saves my time and not give me elaborate lectures, which I would want otherwise. So I have options for that also, but snippet videos will help me do a quick learning and before the exam, and not invest a lot of time, because I as a student would have a lot of things to do, right? So that is the advantage of Imbibe Lens. I would very strongly recommend it for you. Do explore it. Let's get started. Let me also quickly introduce myself. Hi बच्चों, मेरा नाम है अंकना और मैं हूँ आपकी expert for social sciences at Imbibe. Now we'll start with 3 questions. 3 सवालों के साथ फटाफट शुरू करेंगे, उसके बाद हमारे चैप्टर में ड्वेल इन कर लेंगे, ठीक है? तो ये पहला सवाल है, काफ़ी बड़ा सवाल है, बट कोई नहीं, हम आराम से टाइम लेते हैं. लेट मैम गो इन हाइडिंग. सो छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हैज़ द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. It is essentially because of the relative advantages this region has for the development of this industry. These include the low cost of iron ore, high-grade raw materials in the proximity, cheap labor, and vast growth potential in the home market. Where should steel plants ideally be located, considering their importance as the foundation of the various industries and the need for the efficient transport network to distribute finished goods? तो कहाँ पे आयरन इंडस्ट्री होना चाहिए? डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज में, टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नियर मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब्स एंड मार्केट्स टू फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल एरियाज़ में जहाँ पे एक्सेस नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आसानी से मिल जाए, या इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ के लिए, टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. सो यहाँ पे हमको बताया हुआ है कि छोटा नागपुर प्लेटो रीजन है जहाँ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, एसेंशियली बिकॉज रिलेटिव एडवांटेज जो है रीजन का बहुत ज़्यादा है. लो कॉस्ट आयरन ओर है, हाई ग्रोथ रॉ मटेरियल है, चीप लेबर है, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल है. तो उसके बेसिस पे आप क्या जज करते हो, क्या चीज़ें होनी चाहिए? बड़ा एरिया होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आसान करने के लिए, मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब्स और मार्केट्स के पास होना चाहिए, रूरल एरिया में होना चाहिए, या इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में होना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना आए.
बट जो नॉर्मली अच्छा होता है कि रॉ मटेरियल वगैरह अवेलेबल हो, लेकिन हमारे ऑप्शंस भी जो हैं वो थोड़े लिमिटेड दिए गए हैं, इस तरीके से नहीं दिए गए हैं जहाँ पे सारी चीज़ें जो एक इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं इन जनरल वो कवर हो रही हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आप सोच करके यहाँ पे अपना ऑप्शन जो है वो करेक्टली पिक कर सकते हो। सो given the first two options, densely populated areas में everything is going to be very expensive, so major transportation hubs और market facilities हो तो उससे काम बन जाएगा। वो काफ़ी important factor है स्पेशली आयरन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपोर्टिंग और मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। Next, the first textile mill was in India was established in which of the following places? मुंबई, चेन्नई, कानपुर और पटना। कहाँ पे वो पहली जगह है जहाँ पे टेक्सटाइल मिल को स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में? सो द वेरी फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कहाँ पे होगा? नेचुरली जहाँ पे हब होता है कॉटन वगैरह का वहाँ पे होगा। मुंबई में किया गया था। अहमदाबाद वगैरह आज भी जो है ये सारी जगहें आपके जहाँ पे कॉटन अवेलेबल है वो हब मानी जाती हैं टेक्सटाइल की। 1854 में किया गया था, याद रखना। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गेट स्टार्टेड। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को किस में क्लासीफाई किया जाता है? बेसिक, कॉटेज, एग्रो बेस्ड और लाइट इंडस्ट्री? So this is actually a provider of a lot of materials for other industries as well, right? We know that. So this will be considered as a basic industry. वैसे तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं लाइट इंडस्ट्री। तो लाइट तो नहीं है, अगर वहाँ पे बल्कि होता तो हमें पता है कि मतलब मल्टीपल जगह पे बिलोंग करता है आयरन इंडस्ट्री भी। सो बल्कि होता तो हम बल्कि कर सकते थे। कॉटेज तो बिल्कुल नहीं है, एग्रो बेस्ड भी नहीं है, मिनरल बेस्ड है। बेसिक इसलिए है क्योंकि ये बाकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, सप्लाई करता है सामान, उनके लिए बनाता है काम। तो ये नोडल इंडस्ट्री, नोडल आपका वो कह सकते हो, सप्लाई कह सकते हो, ऑल ऑफ दैट इज देयर। ठीक है। So have you ever thought that how the majority of things that you basically have, pen, paper, whatever we have, you know, is done, production की जाती है, they are all produced in the manufacturing industries. कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, कैसे हम तक पहुँच रही हैं, क्या प्रोसेस है, दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सेकेंडरी सेक्टर, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमने पहले पढ़ा हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर को बिलोंग करता है। तो जब भी प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटीज़ में होती हैं रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्या होता है, यूटिलिटी बढ़ जाती है सामान की और वर्थ बढ़ जाती है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ आटा खरीद रही हूँ, जस्ट फ्लावर इफ आई एम बाइंग, देन इट मे बी 20 रुपीज़ का, ठीक है। बट इफ आई हैव मेड दैट 20 रुपीज़ का बिस्किट्स, I have transformed it and I have manufactured it. Now the same 20 rupees will be now sold for 35 rupees, 40 rupees, 45 rupees. So क्या होता है, यूटिलिटी बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ज़्यादा यूटिलाइजेशन वाला, ज़्यादा वर्थ का, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान बन जाता है। दिस इज़ द whole idea of manufacturing. Now industries that manufacture finished products primarily are known as manufacturing industries. Simple as that. ये secondary sector में belong करता है, हमने sectors of Indian economy में पहले ही समझा और पढ़ा हुआ है।
देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बच्चे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड करती है, इनफैक्ट उसके बेसिस पे कैलकुलेट भी की जाती है. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर लाइक द बैकबोन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी ऑफ अ नेशन. ये वो भी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा मैन पावर एब्जॉर्ब करती है. ठीक है. So the manufacturing sector is considered as the backbone of development, as I was just telling you. Why? So if you get this question maybe for 3 marks or 5 marks, right here is your explanation. क्यों हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बैकबोन की तरह कंसिडर करते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर को हेल्प करता है जो है मॉडर्नाइज करने में. कैसे हेल्प कर रहा है? ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, मशीन्स प्रोड्यूस कर रहा है, फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है. तो इससे क्या हो रही है? मॉडर्नाइज होने में एग्रीकल्चर को हेल्प मिल रही है, एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट मिल रहा है. एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है या ग्रोथ भी दे रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर को. कैसे? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, द मोर दे ग्रो, द मोर रॉ मटेरियल दे रिक्वायर, देन द मोर रॉ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी सेक्टर, विच विल हेल्प द प्राइमरी सेक्टर को ग्रो. एक्सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो फॉरेन एक्सचेंज लाता है, एंड नॉट जस्ट दैट, हमें इंडिपेंडेंट बनाता है. द मोर प्रोडक्शन वी डू द मोर इंडिपेंडेंट वी आर, एंड लेस इम्पोर्ट विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम आर एंड विच विल हेल्प अस मेक मोर मनी एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट, प्लस बी इंडिपेंडेंट. Helps in eradication of unemployment and poverty, because of course job generation is a very simple reason. And helps transforming raw materials into a variety of furnished goods at a finished goods होगा ये, actually furnished नहीं होगा, finished goods at a higher value. तो ये तो हमें समझ आ ही गया है कि चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करता है, उसकी वैल्यू बढ़ाता है. अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है बच्चे, ये इंटरलिंक्ड है बहुत ज़्यादा और बहुत इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. वैसे तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से हम ये भी समझ चुके हैं कि सारे ही सेक्टर्स इंटरलिंक्ड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक दूसरे की ग्रोथ में. बट दिस पर्टिकुलरली ओवर हियर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वेरी मच गो हैंड इन हैंड. वो हमने एक एग्जाम्पल देखा भी कैसे. देखो, इंडस्ट्रीज जो है वो सारा प्रोडक्शन, सारा मैं नहीं कहूँगी, बट अ ह्यूज चंक ऑफ प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर से होता है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम करती है, जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, पैसा जनरेशन, ग्रोथ सब कुछ प्रोवाइड करती है उनको. बट एट द सेम टाइम ये रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत रिक्वायर्ड है जो फुलफिल किए जाते हैं प्राइमरी सेक्टर के द्वारा. तो उनकी नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर फुलफिल कर रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं, प्राइमरी सेक्टर के ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब भी कौन दे रहा है? इंडस्ट्रीज़ दे रही है. मैन्युफैक्चर करके ट्रैक्टर बना रही हैं, उनके लिए फर्टिलाइज़र बना रही हैं, अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन कर रही हैं, टूल्स का प्रोडक्शन कर रही हैं. सो इंडस्ट्रीज़ गिव अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, बाय प्रोवाइडिंग देयर टूल्स एंड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो कंज्यूमिंग देयर रॉ मटीरियल्स एंड इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर इट. वेयर एज इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटीरियल्स and also the sell of their products, which again if increases in primary sector, they will grow more, they will manufacture more. So it goes hand in hand, they're very much interdependent. अगर अब हम बात करें कंट्रीब्यूशन की उसकी इन द नेशनल इकोनॉमी, पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन अराउंड 17%. हम इसे कॉन्स्टेंटली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं. अ टोटल ऑफ 27% ऑफ जीडीपी इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडस्ट्री, जिसमें से 10% जो है वो माइनिंग, क्वारिंग, पावर और गैस से आता है. जो एवरेज ग्रोथ है हमने जो देखा है अभी 7% है. वी आर टारगेटिंग एट लीस्ट फॉर 15% ऑल्सो, बिकॉज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ एशियन कंट्रीज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली वे मोर एट अ फास्टर स्केल देन दिस. So we also get an understanding that we can definitely grow along with them, right? So the annual growth right now that we are looking at is 9 to 10% since 2000. तो on an average 9 से 10% का growth हो रहा है कि अगर मान लो 1400 रुपीज़ हमने पहले किया तो अब हम 1540 रुपीज़ कर रहे हैं, so on and so forth. लेकिन ग्रोथ रेट जो हम चाहते हैं वो 12% है, विच इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड अ लॉट बाय द कंट्रीज, एशियन कंट्रीज विच हैव had a way faster growth like 17%, 24%. So
तो हम इसलिए फोकस कर रहे हैं और हम गोल को रियलिस्टिक रखते हुए ये मान रहे हैं कि हम 12% अचीव कर पाएंगे। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल को इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया है कि वो इस गोल को फुलफिल करे, बूस्ट करे प्रोडक्टिविटी को और एक फोकस्ड मूवमेंट कराए फॉरवर्ड। ठीक है, चलो अब बात करते हैं लोकेशन की। देखो इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, कैसे है, जैसे आप बहुत बार देखते होंगे, मान लो अहमदाबाद की बात लेते हैं। अहमदाबाद इज और मुंबई इज द टेक्सटाइल हब, भर भर के वहाँ पे इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल की। तो आपको भी लगेगा कि सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे ही क्यों खोल दी हैं, कहीं और खोलना चाहिए था, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता, बेटर होता, ज़्यादा आसानी होती, ये हब क्यों बना दिया। और ज़्यादातर आप ऐसे ही देखोगे कि एग्लोमरेशन सा बना हुआ है, इंडस्ट्रीज ज़्यादातर वहाँ पे ही खुली पड़ी हैं जहाँ पे बाकी सारी इंडस्ट्रीज हैं। क्यों अलग अलग जगह स्कैटर नहीं हो रही हैं? हो सकता है दूसरी जगह बेटर लेबर मिल जाए, ज़्यादा जगह मिल जाए, यहाँ पे तो ऑलरेडी इतनी इंडस्ट्रीज है, किसी दूसरी तरफ जाना चाहिए। पर इंडस्ट्री का लोकेशन बच्चे ऐसे ही डिसाइड नहीं होता है। इंडस्ट्री का लोकेशन बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा अफेक्टेड होता है, इम्पैक्टेड होता है और उसी के ऊपर बेसिस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे जो है इंडस्ट्री लोकेटेड होगी। और अगर वो सारे फैक्टर्स किसी एक जगह पे फुलफिल हो रहे हैं तो ज़्यादातर आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज आर गोइंग एंड सेटिंग अप देयर। दिस इज द रीजन व्हाई यू यूजुअली फाइंड लाइक अ हब ऑफ सिमिलर फैक्ट्रीज installed in one place. What are these factors and why are these factors? Let me quickly explain it to you. सबसे पहले raw material. So availability of raw material is very very important. अगर raw material ही नहीं हुआ तो आप produce क्या करोगे? आपका काम बाकी चाहे कितनी बढ़िया मशीनें, लेबर कोई भी हो, आपको ग्रोथ ही नहीं होगा। लेकिन लोकेशन के पहले, मतलब मैं जो फैक्टर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ उसमें सबसे पहले आपको ये समझा दूँ कि सबसे बड़ा रोल कैपिटल का होता है। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वाई कैपिटल, because each and every industry will try to ensure that they make the profit maximum. तो कहाँ पे देखो, हो सकता है कि कहीं पे मैंने इंडस्ट्री सेट की और वहाँ पे मेरे ट्रांसपोर्टेशन में मेरे को बहुत पैसे लग जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी फैक्टर्स इतने सस्ते पड़ रहे हैं दैट द ओवरऑल कॉस्ट इज रियली मिनिमल फॉर मी। ये प्राइमरी चीज़ होती है ना, ये प्राइमरी कंसर्न होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए कि जो ओवरऑल कॉस्ट है ना वो कम होना चाहिए। तो सारे फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, बट इनमें से सबका खर्चा जोड़ करके जहाँ पे भी कॉस्टिंग सबसे कम आएगी और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा बनाने की, इंक्रीज करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, वहाँ पे आप देखोगे इंडस्ट्रीज को सेट होते हुए, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब मैंने देखा कि मैं कहीं ऐसे जगह सेट हो रही हूँ जहाँ लेबर आराम से अवेलेबल है, पावर सस्ता पड़ता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत फेवरेबल है, मार्केट पास ही है और पैसा मेरा ठीक ठाक बन रहा है। रॉ मटेरियल दूर से लाना पड़ रहा है लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत सस्ती और बहुत अफोर्डेबल हो रही हैं, मेरे लिए ओवरऑल ये कॉस्ट बेटर है, तो मैं रॉ मटेरियल को दूर से भी मंगवाने के लिए रेडी हो जाऊंगी, बिकॉज ओवरऑल मेरा खर्चा कहाँ कम पड़ रहा है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, लेबर, हर जगह जहाँ पे भी स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल हो, पढ़े लिखे लोग भी अवेलेबल हो, मैनुअल लेबर करने के लिए अनस्किल्ड लेबर भी हो, अफोर्डेबल हो, अबंडेंस में हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी कि अफोर्डेबल हो, अबंडेंस में हो, है ना, ज़्यादा नंबर अमाउंट में हो, ऑल ऑफ दिस विल मैटर। पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, बिकॉज फैक्ट्रीज हमें पता है पूरी ऑटो चल रही होती है, ऑटो जनरेटेड होती है, तो इसके लिए पावर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेवरेबल होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे मान लो टैक्स कम लग रहा हो, रूल्स रेगुलेशंस थोड़े से लीनियंट हो, ये सब बहुत मैटर करेगा। देन मार्केट, फिनिश्ड गुड कहाँ जाता है? फिनिश गुड मार्केट जाता है। अगेन ट्रांसपोर्टेशन, अगर फिनिश गुड मेरा पहुंचने के लिए मेरा मार्केट पास में है तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, प्लस मेरे कंज्यूमर्स होने तो चाहिए। अब मान लो मुझे वुलन फैक्ट्री खोलनी है और मैंने जा कर के खोल दी गोवा में। अब गोवा में गर्मी होती है,
ठंड तो होती नहीं है, कभी भी नहीं होती है, कभी भी मेरा एक भी स्वेटर एक भी जैकेट बिकेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ऐसे केस में, ऐसे जगह पे मार्केट में मैंने बाकी सारे सस्ते फैक्टर्स अगर गोवा में ढूंढ भी लिए, लेकिन मेरा मार्केट मैंने नहीं ढूंढा और वो वहाँ बिक ही नहीं रहा है, तो फ़ायदा क्या है? फिर प्रॉफिट और ओवरऑल कॉस्ट कुछ भी मायने नहीं रखेगा। तो मार्केट की प्रॉक्सिमिटी एंड मार्केट की अवेलेबिलिटी भी बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। सो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ हम देखते हैं कि वहाँ पे लोकेटेड होते हैं जहाँ पे ये या तो सारे ही ऑप्शंस उनके लिए इजीली अवेलेबल हो या मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल हो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट हैज़ टू बी एट द लोएस्ट कॉस्ट। जहाँ पे सब चीज़ों को मिल मिलाकर पैसा कम लग रहा है, वहाँ पे वो इंडस्ट्री पहुँच जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अर्बनाइजेशन को भी लीड करती है। क्यों? इंडस्ट्री सेट होता है तो इंडस्ट्री के साथ बहुत और भी इंडस्ट्री सेट होती हैं। उसके बाद जो है वर्कर्स आने लग जाते हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड हर तरीके के, जो कि पैसे कमा रहे हैं। अब उनको सस्टेन करने के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी। सस्टेनेंस के लिए क्या चाहिए होगा? फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी। कैसी फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी? हॉस्पिटल मान लो, बच्चों के लिए स्कूल मान लो, मार्केट चाहिए होगा, ग्रोसरी शॉप, मेडिकल शॉप, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट के लिए घर चाहिए होंगे, ये सब का कंस्ट्रक्शन होगा। तो ऐसे करते करते क्या होता है, धीरे पहले एक चीज़ बनती है, जब भीड़ आती है कहीं पे फिर दूसरी बनती है, फिर भीड़ के साथ साथ ये चीज़ बढ़ती जाती है और जो एक बंजर ज़मीन कभी रही होगी वो एक सिटी में, अर्बन एरिया में ट्रांसफॉर्म कर जाता है विथ ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज़। सो लॉट ऑफ टाइम्स वी सी दैट दीज इंडस्ट्रीज आर एक्चुअली सेटिंग अप इन अ सर्टन प्लेस, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ दोज प्लेसेस, पीपल आर मूविंग देयर एंड देन अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग। लेकिन एक और चीज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ को भी अपनी कई सारी रिक्वायरमेंट होती है अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर्स लाइक पावर, लोकेशन एंड लेबर एंड ऑल ऑफ दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़, some मॉडर्न फैसिलिटीज़, और ये सब पहले से सिटीज़ में स्टैब्लिश होती हैं। तो कई बार इंडस्ट्रीज़ में ये भी देखा गया है कि वो जाकर के वहाँ पे स्टैब्लिश होती हैं जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ पहले से हैं, जैसे कि सिटीज़ में। तो जब ऐसा होता है कि अर्बन सेंटर्स में बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ ये सारे इंडस्ट्रीज़ जाकर के सेट इन होते हैं और इंस्टॉल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ठीक है, क्या बोलते हैं? एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ओके, तो दो तरीके से होता है, इंडस्ट्री सेट होती है फॉलोड बाय अर्बनाइजेशन, अ लॉट ऑफ टाइम्स अर्बनाइजेशन इज फॉलोड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जब अर्बनाइजेशन फॉलो होगा फैसिलिटीज़ की वजह से बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस विल बी एग्लोमरेशन इकोनॉमी, अदरवाइज द अदर वे राउंड। ठीक है, अब बच्चों आपके लिए एज यू नो वी ऑलरेडी हैव द वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, स्पेशली नाउ दैट यू विल बी मूविंग टू द 11th-12th स्टैंडर्ड। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर साइंस, दिस इज गोइंग टू बी अ मार्वेलस टूल फॉर यू बिकॉज यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस ऑल योर प्रैक्टिकल्स। स्कूल के बावजूद और भी अगर प्रैक्टिस करना है, घर बैठे यहाँ पे आराम से कर सकते हो, सारी चीज़ों का एक्सेस है, बेटर लर्निंग है, एंड प्रैक्टिकल इज सपोज टू बी लर्न बाई डूइंग, दैट इज अ वेरी मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल। तो कभी अगर प्रैक्टिकल में मिस हो गया, समझ नहीं आया, कुछ भी हुआ, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और अब तो आपके पेपर में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और वो भी स्कूल के टीचर्स असेस नहीं करेंगे, बाहर के एक्सटर्नल्स आकर के भी असेस करेंगे। तो वहाँ पे कोई भी लीनियंट मार्किंग और फुल मार्क्स मिल गए और ये थोड़ी आसानी पड़ गई, पहले से स्कूल में इंटरनल मार्किंग में फिर भी थोड़े से टीचर्स प्यार मोहब्बत से दे देते हैं नंबर, लेकिन हमें परफेक्ट होना पड़ेगा, अब एक्सटर्नल्स आएंगे इसलिए। तो मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग दिस ऐप टू द बेस्ट। एंड बाई ब्लेंड्स का मैजिक तो आप देख ही चुके हो, और बाकी मैं और क्या कहूँ। सो नाउ टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज हमने उनको क्लासीफाई किया है, किस चीज़ पे? रॉ मटीरियल पे। तो वैसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, सो गाइस जस्ट गिव मी वन क्विक सेकेंड। ओके, तो अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे होगी। पहली चीज़ जो हम कर रहे हैं वो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कहाँ से रॉ मटेरियल आता है? अगर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से आ रहा है, जैसे मान लो वुल आ रहा है, वीट आ रहा है,
या एनिमल बेस्ड या प्लांट बेस्ड कुछ भी आ रहा है, तो ये हो जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि इनकी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल सेक्टर से आ रही है। कॉटन आ रहा है, वेजिटेबल ऑयल, ये सब क्या होते हैं, ये खेती बाड़ी जानवरों से कुछ सामान लेकर के आते हैं और वहाँ से प्रोसेसिंग होती है। दूसरा होता है मिनरल रिसोर्स, मिनरल ओर, आयरन ओर हो गया, ठीक है। मिनरल ओर से जब आते हैं, मतलब आयरन ओर, बॉक्साइट, ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गया। माइनिंग वाली एक्टिविटी से अगर निकल करके आती है हमारी रॉ मटेरियल, तो वो इंडस्ट्रीज जो ऐसी सारी चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं उनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज का कई बार दूसरी इंडस्ट्रीज को भी फीड करता है। जैसे आयरन ओर इंडस्ट्री अगर है, एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, आयरन की इंडस्ट्री है, वो क्या करेगी, कुछ ऐसा मटेरियल बनाएगी जो सीधा शायद कंज्यूमर के पास जा रहा है, बट ऐसा भी बहुत सारा मटेरियल बनाएगी, मशीनें बनाएंगी, कुछ टूल्स बनाएंगी जो दूसरे फैक्ट्रीज के लिए जाती है। तो ऐसे इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज भी होती हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन भी हो रहा होता है। फिर मेन रोल, काम कैसा है इंडस्ट्री का, उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रीज के। तो दो तरह के, अभी हमने बात की, दो तरह की इंडस्ट्री होती है। एक इंडस्ट्री जो सीधा कंज्यूमर के लिए सामान बना रही है, वो उन्होंने बिस्किट बनाया, केक बनाया, वो सीधा कंज्यूमर ले जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कुछ ऐसा सामान बना रही होती हैं जो दूसरे इंडस्ट्रीज के काम आ रही है। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका आयरन हो जाता है, कॉपर हो जाता है। जैसे कि उन्होंने वायर बनाया, तो फिर वायर की इंडस्ट्री वो कॉपर वायर को लेकर के अपनी कवर के साथ वायरिंग करेगी, या कुछ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज है जो वो कॉपर वायर को एल्यूमिनियम वायर को लेकर के अपने सामान में लगाएंगी, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाएंगी। तो दो इंडस्ट्रीज हो गई। एक ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसे सामान को मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे मान लो कोई केमिकल इंडस्ट्री है, वो केमिकल वो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को देंगी। तो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो ऐसा सामान मैन्युफैक्चर कर रही है जो दूसरे इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बने, उसके काम आए, ऐसी इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे कि आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, कॉपर स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज। और जो इंडस्ट्रीज सीधा ऐसा सामान बना रही हैं जो सीधा कंज्यूमर को दो आप, शुगर, पेपर, बिस्किट एटसेट्रा, ये सब हो जाती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पैसा कितना लगा। तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। जिन इंडस्ट्रीज में 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री है, पैसा ज़्यादा लगा है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगा। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिन्हें कई बार कॉटेज इंडस्ट्रीज के फॉर्मेशन में भी देखा गया है, वो इंडस्ट्रीज है जिनका जो सेटअप है थोड़ा छोटा होता है, प्रोडक्शन थोड़ा छोटा होता है और इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली छोटा होता है, 1 करोड़ से कम होता है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। अब ओनरशिप के बेसिस पे बच्चे हम 4 सेगमेंट में क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला प्राइवेट होता है, मेरा अपना है, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का है। तो ये जब कुछ ओनर्स होते हैं अकेले या कुछ ग्रुप्स में होते हैं, वो ओन करते हैं, अपना रूल रेगुलेशन अपने हिसाब से चलाते हैं। गवर्नमेंट में एज सच बेसिक लेबर लॉज वगैरह बाइंड करेंगी, बट सब कुछ इंटरवेंशन गवर्नमेंट का नहीं होगा। ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री हो गई, जैसे कि बजाज, टाटा, रिलायंस, ठीक है। फिर होती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी कि वैसी इंडस्ट्रीज जो सरकार चला रही है, सरकार के पैसे, उनके एम्प्लॉयज सरकारी एम्प्लॉयज, ठीक है। इट इज ऑपरेटेड बाय देम, लुक्ड आफ्टर बाय देम। तो जैसे आपका HEC हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, या फिर बेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो गवर्नमेंट के अंडर लाई करती हैं। एक सेटअप ऐसा भी होता है कि दोनों मिलके करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके करते हैं, इसको जॉइंट सेक्टर कहते हैं। ये ऑपरेट ओन्ड होता है और ऑपरेट किया जाता है बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स एंड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सो बेसिकली गवर्नमेंट अकेले पूरा प्रोडक्शन नहीं रखती है, आउटसोर्स करती है और कुछ लोगों के इंडिविजुअल प्राइवेट लोगों की मदद से भी इसको प्रैक्टिस करती है। तो जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL ऑयल कंपनी हो गई, मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स, कोचिन रिफाइनरीज, ये सब क्या है, सरकार और कुछ आउटसोर्स्ड इंडिविजुअल्स मिल करके, कोई प्राइवेट कंपनी मिल करके कोई प्रोडक्शन चला रहे हैं, बिकॉज प्रॉबली द गवर्नमेंट वाज नॉट हैविंग ऑल द रिसोर्सेज और दे नीडेड सम हेल्प फॉर द क्वालिटी और द टेक्नोलॉजी, सो दे विल टेक हेल्प ऑफ द प्राइवेट ओनर्स। देन यू हैव कोऑपरेटिव सेक्टर्स। कोऑपरेटिव सबसे इंटरेस्टिंग है। कोऑपरेटिव में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है रॉ मटेरियल का, नॉर्मली वही
आपका मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, तो वो पहले रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, उसकी फैक्ट्री रखता है, वहाँ पे लाकर उसे मैन्युफैक्चर करता है, ओन करता है, ऑपरेट करता है। तो रॉ मटेरियल, वर्कर और ये सारी चीज़ें वो खुद ही संभालता है। जैसे कि शुगर केन में बहुत देखा जाता है। शुगर केन क्या होता है बच्चे? शुगर केन की प्रोडक्शन ना महीने में साल में कुछ महीने ही होती है, 7 से 10 महीने 12 महीने उसे लगते हैं ग्रो करने में। तो उतने दिन फार्मर उसको ग्रो कर रहा है, तो उतने दिन जिसकी फैक्ट्री है वो क्या करेगा? और फिर जब प्रोडक्शन हो रहा है तब शुगर केन ग्रो कर रहा है, तो फार्मर क्या करेगा? तो इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये दोनों अलग अलग रखने से बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है। पूरे बाकी साल के टाइम पे आप शुगर केन को ग्रो करो, और जब वो जैसे ही आपका रेडी हो जाए उसको खुद ही ले जा करके प्रोसेस कर दो। ये सबसे अच्छा तरीका है, इसको कोऑपरेटिव कहते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है मैक्सिमाइज करने का प्रोडक्टिविटी। सो शुगर इंडस्ट्री, कॉयल इंडस्ट्री, ये सब कुछ जो है इसका एग्जाम्पल है। देन इन टर्म्स ऑफ वेटेज, सामान जो है रॉ मटेरियल या जो फिनिश्ड गुड है उसका वजन कैसा है? बल्की है, हल्का है, छोटा है, लाइट है? जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, सीमेंट का जो रॉ मटेरियल होता है, या आयरन ओर का जो हो गया, बॉक्साइट के पत्थर होते हैं बड़े बड़े, ये सब क्या होता है? रॉ मटेरियल बल्की होता है। तो जिनका भी रॉ मटेरियल बल्की होता है या प्रोड्यूस्ड गुड भारी होता है उन्हें हम हैवी इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी मशीनें बन के निकलती हैं। वहीं पे लाइट इंडस्ट्री क्या हो गया? वो जो हल्का रॉ मटेरियल भी यूज़ करे और जिनका जो प्रोड्यूस किया हुआ गुड है वो भी थोड़ा हल्का ही हो, कुछ बहुत हैवी भारी एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा ऐसा हो, ऐसा ना हो। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में ड्वेल करेंगे। एग्रो बेस्ड से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। बच्चे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही हमने काफ़ी पहले शुरू की थी और ये एक खुद में इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है, यानी कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड सब कुछ हम हमारे पास खुद से प्रोड्यूस करते हैं। हर एक स्टेज की अवेलेबिलिटी हमारे पास है और काफ़ी यूनिक पोजिशन ऑक्यूपाई करती है। अ लॉट ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड इन दिस एंड दे हैव अ लॉट ऑफ contribution in the manufacturing and production that is done in manufacturing industries that comes from textile industries. तो ये बहुत यूनिक पोजीशन इस वजह से इंडियन इकोनॉमी में ऑक्यूपाई करती है। ये कंट्रीब्यूट करती है काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एंड फॉरेन एक्सचेंज में, क्योंकि हम सारा सामान रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन भी इंडिया में हो रहा है कॉटन में, उसका सारा स्पिनिंग एंड यार्न बनाना, थ्रेड बनाना, उसकी आपकी वीविंग करना, टेक्सटाइल बनाना, उसका डाई करना, एक फॉर्मल फाइनल शर्ट बना देना या कपड़ा बना देना, ये सब कुछ A to Z जो है इंडिया में ही होता है। सो दिस इज अ वेरी सेल्फ डिपेंडेंट इंडस्ट्री एंड डज अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन और बहुत ज़्यादा इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी लाती है। ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एज आई टोल्ड यू, जहाँ पे कोई भी मटेरियल जो है हमें कहीं और से चाहिए नहीं होता है। कि कुछ नॉर्मली क्या होता है, प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स चाहिए होते हैं और उनमें से कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होता है और एक कंप्लीट वैल्यू चेन इसकी बनी हुई है। So, talking about the very first industry, the very first successful textile mill that was established in India was in Mumbai in 1854. The two world wars were fought Europe में and India में, which was a British colony. There was a demand of a lot of cloth in UK, hence हमें उस मतलब बेसिकली यूनिफॉर्म्स चाहिए थे बहुत ज़्यादा आपको, जो सोल्जर्स थे, आर्मी थे, उनके लिए बैग्स चाहिए थे। तो ऐसे सारे टेक्सटाइल की बहुत प्रोडक्शन चाहिए थी। तो वो डिमांड यूके पूरा फिनिश नहीं कर पा रहा था। यूके ज़्यादातर वॉर प्रोडक्शन और भी कुछ चीज़ें कर रहा था, तो बूस्ट मिल गया वहाँ पे हमें वहाँ पे मौका मिल गया जहाँ पे हमने क्या किया, हमने हमारा प्रोडक्शन अपना खुद से स्टार्ट फिर कर लिया, क्योंकि डिमांड इतनी थी कि ब्रिटिशर्स ने भी हमको वहाँ पे रोका नहीं। नॉर्मली वो हमारे इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं होने देते थे, रोकते थे, टैक्सेशन का, कंडीशन का, अलग अलग तरह का इशू क्रिएट करते थे, ठीक है। सो दैट इज हाउ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली बिगैन इन इंडिया इन 1854 एंड ग्रू मार्वेलसली। देन यू हैव मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्टार्ट्स विद एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है ये, मेटल वाला इंडस्ट्री, अपार्ट फ्रॉम आयरन इंडस्ट्री विच हैज़ नाउ बीन रिमूव्ड। The raw material is used in the smelters which is bauxite. तो एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल क्या है, बॉक्साइट है, बल्कि होता है, इसीलिए बल्कि में ये क्वालिफाई होता है। ये यूज़ किया जाता है अलग अलग तरह की चीज़ों में, क्योंकि मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, ये सब इसकी काफ़ी अच्छी है। तो एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, क्योंकि वेट बहुत कम है एल्यूमिनियम का और बड़ा अच्छा से शेप हो जाता है, मोल्ड हो जाता है, यूटेंसिल्स बनाने में, वायर बनाने में,
and it has gained popularity as a substitute for steel, a better one, a lighter one and also less expensive one. ठीक है, तो मतलब हमने देखा है कि कई जगह सब्सटीट्यूट कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एल्यूमिनियम हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वन. फिर आती है कि कैसे पॉपुलैरिटी जो हो गई है, तो किन एरियाज में अवेलेबल है एल्यूमिनियम. तो उड़ीसा बचे, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आर फ्यू ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग दिखती है. ठीक है, तो ये प्रोसेस आप देख सकते हो यहाँ पे. आई विल क्विकली पुट अप द वीडियो हियर वंस अगेन वेयर यू विल बी एबल टू सी द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर वंस फॉर योर सेल्फ. So guys, this is how basically the method of aluminum smelting works, and this is the whole process that we just saw. Now moving on, talking about chemical industry, it comprises both large and small scale manufacturing units. Rapid growth has actually been recorded. हम देख रहे हैं कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो धीरे धीरे ग्रो कर रही है और बढ़ती जा रही है. रैपिड ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड किया गया है दोनों ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर्स में. तो केमिकल दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिकल होता है और एक इनऑर्गेनिक केमिकल होता है. लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में भी हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है. देयर लाइक अ लॉट ऑफ मटेरियल्स जो हमें सीधा सीधा इंडिया में अवेलेबल नहीं मिलता है. तो वी हैव टू एक्चुअली इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स और बाई फ्रॉम अदर प्लेसेस वेयर इट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज एक बेसिक इंडस्ट्री की तरह भी एक्ट करती हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस वन केमिकल विच इज़ रिक्वायर्ड बाय अनदर केमिकल इंडस्ट्री, दैट इज़ द लूप दैट गोज ऑन. सो एनीवेज, आपको हर तरह की हर लेवल की इंडस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी. लार्ज इंडस्ट्री मिल जाएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग लैब्स मिल जाएंगी. ये एक इंडस्ट्री है जो धीरे धीरे लोग डिस्कवर कर रहे हैं. ज़्यादा डिमांड्स बढ़ रही हैं जैसे कि डाई के लिए और अलग अलग पर्पसेस के लिए, तो इसकी ग्रोथ बढ़ रही है. इनऑर्गेनिक मटेरियल में हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइज, सोडा ऐश एंड कॉस्टिक सोडा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है वो इंक्लूड करती है पेट्रोकेमिकल्स. ठीक है, जो पेट्रोलियम बेस होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है बाकी आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भी, कि पेट्रोलियम भी जो है रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है फॉर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. सो इट इज़ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इज़ वन ऑफ दोज जहाँ पे वो बहुत अच्छे रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है. फिर आती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. अब के लिए केमिकल इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि लॉट ऑफ केमिकल्स दैट दे रिक्वायर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर दैट कम्स फ्रॉम द केमिकल इंडस्ट्रीज. ठीक है, सो इट इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स, phosphatic fertilizers and ammonium phosphate and some other complex fertilizers. जिन एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है वो है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला. Guys, do remember to memorize the elements which are not available, especially the chemicals not available in India and which is exported, because वो हो सकता है कि 1 मार्क क्वेश्चन में आपको एक चीज़ पूछ दे और वो एक चीज़ हो सकता है हमें याद ना हो. तो हम नहीं चाहेंगे कि हम उस उलझन में पड़े, तो हम याद रखेंगे इसे. ठीक है, बाकी क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ एज सच है नहीं पूछने के लिए. सो दैट इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड. Then you have the automobile industry. This is the industry which deals with manufacturing of vehicles.
दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की जाती है. Now IT and electronic industry also falls under mineral based industry because बहुत ज़्यादा हार्डवेयर वगैरह में जो है आपका मिनरल्स यूज़ होते हैं अलग अलग तरीके के, वायरिंग एंड ऑल ऑफ दैट. So it covers a wide range of products and equipments which is required by the telecommunication industry. Computer हो गया, लैपटॉप हो गया, रेडियो, टीवी, mobile phones, remotes, a lot of things that falls under the IT and the electronic industry. Not just the production, even the service will actually fall under this. Service का भी थोड़ा सा हिस्सा आता है. So it earns a lot of foreign exchange क्योंकि जो BPO सेक्टर है वो बढ़ता जा रहा है. बैंगलोर आपने याद रखना है इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. और भी सेंटर्स हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर जो आपकी IT एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में फॉल करती है. नाउ इंडस्ट्रीज़ तो हैं, बहुत फ़ायदे भी हैं लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी है. और हम ये बहुत वक्त से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ कई सारा, जब भी कॉन्जर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इन सब में से कुछ की भी बात आती है, एक फैक्टर कॉमन हमेशा उठ के खड़ा होता है कि इंडस्ट्रीज़ को अपने कचड़े को फिल्टर करना ज़रूरी है. इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं. सो इट इज़ द इंडस्ट्रीज़ विच नीड्स टू फिल्टर आउट एंड फिगर आउट एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बट वॉट आर द काइंड ऑफ पोल्यूशंस दैट इट कॉजेज? प्रिटी मच एवरीथिंग. हर एक चीज़ जो हो सकती है उसे पोल्यूट करता है इंडस्ट्री, चाहे वो हवा हो, पानी हो, ज़मीन हो या इवन नॉइज़ तक. सो इट प्रोड्यूसेस 4 kinds of pollutions you guys: air, water, land and noise. वाटर पोल्यूशन से शुरू करते हैं. बहुत सिंपल है समझना कि कैसे वाटर पोल्यूशन कॉज हो जाता है. इंडस्ट्रीज से कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है. जब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली होती है तो दे हैव सम वेस्ट मटेरियल पेंडिंग, मतलब वेस्ट मटेरियल दैट इज़ क्यूमुलेटेड. वो वेस्ट मटेरियल को उनको दे वांट टू गेट रिड ऑफ. इसलिए हम कई बार देखते हैं कि इंडस्ट्रीज एक्चुअली वहाँ सेट होती है जहाँ पे कोई वाटर बॉडी होता है, रिवर होता है, कुछ सी ओशन अगर हुआ तो ठीक है, बट वाटर बॉडी होता है जो फ्लो करा करके उनके अफ्लुएंस को, वेस्ट मटेरियल को ले जाए. ये जो कलेक्शन होता है उनका पूरा वेस्ट मटेरियल का, वो उसे क्या करते हैं, सीधा सीधा बिना ट्रीट किए डंप कर देते हैं पानी में. अब पानी में जो कचरा डला, केमिकल्स डला, उसकी वजह से जो पोल्यूशन हुआ, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कई बार, उससे पोल्यूशन हुआ. एक्वेटिक लाइफ, एनिमल्स, प्लांट्स दोनों को हार्म हुआ, वो तो हुआ ही. उसके ऊपर एक और प्रॉब्लम क्या करते हैं, ये थर्मल पोल्यूशन भी करते हैं. ये जो एफ्लुएंट ये निकाल कर डाल रहे होते हैं, ये क्योंकि पूरी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग से रन किया होता है, ये बहुत गर्म होता है. दे डू नॉट ट्रीट इट. ओके, उसको ट्रीट नहीं करते हैं, उसको सही टेम्परेचर पे नहीं लाते हैं और सीधा वैसा उठाकर वैसा का वैसा ही वो कर देते हैं, फ्लड कर देते हैं, फ्लश कर देते हैं, जो कह दो, उसको सीधा फेंक देते हैं बहते हुए पानी में, जो कि फर्दर टेम्परेचर चेंज करता है और एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है. So it is caused by organic and inorganic industrial wastes and effluents discharged into the rivers. Fly ash, phosphogypsum, some iron and steel slags, these are major solid wastes that you find in India, which does the water pollution. It is caused by both organic and inorganic industrial waste and effluents discharged into the rivers. So we have already seen कि आयरन स्टील का भी जो बचा हुआ पोर्शन होता है, मतलब ऐसा है कि सिर्फ लिक्विड ही नहीं निकल रहा है, कुछ सॉलिड मटेरियल्स भी निकल रहे हो. और सॉलिड मटेरियल्स अगर आप पानी में डंप कर रहे हो, फिशेस उसको खा लेंगी, उनसे हमारे बॉडी में भी आएगा या पानी में ही इन जनरल रहेगा. थर्मल पोल्यूशन का प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ही. हॉट लिक्विड निकलता है, उसे ट्रीट नहीं किया जाता है, उसे सीधा सीधा लेक में, वाटर में, रिवर में डंप कर देते हैं. तो ये ज़्यादातर हम देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हो रहा होता है प्रॉब्लम.
बट दैट क्रिएट्स अ टेम्परेचर डिफरेंस जो पोल्यूशन भी करता है और इन जनरल एक्वेटिक लाइफ्स को बहुत डिस्टर्ब भी करता है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे हॉट लिक्विड जब फ्लो हो रहा है तो थर्मल पोल्यूशन ऑल ऑफ अ सडन हीट अप हो गया, तो ये फिशेस जो हैं दे एंड अप डाइंग बिकॉज ऑफ इट. ठीक है, सो दिस इज डिस्टर्बिंग द होल इकोसिस्टम ऑफ द एक्वा लाइफ. देन यू हैव नॉइज पोल्यूशन. अब भैया फैक्ट्री है तो बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, अब मशीनें चलती हैं तो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं, बहुत ज़्यादा शोर करती हैं तो होता है नॉइज़ पोल्यूशन, जिससे होता है हमें प्रॉब्लम. कान में प्रॉब्लम होती है, हियरिंग की इश्यूज हो सकती है, इरिटेशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, ऐसे कई सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं बिकॉज देयर इज अ कंसिस्टेंट ड्रिलिंग नॉइज एंड अ जनरेटर नॉइज एंड अ मशीन रनिंग नॉइज. So it is caused by the industrial and the construction activities, the machinery, factory equipment, generator, saw and pneumatic and electrical drills. Result क्या होता है? आपको irritation होगा, सर में दर्द होगा, you will be less patient, you will be very edgy, you will be angry, it will cause hearing impairment and issues. Heart rate increase कर देता है because the noise can cause palpitations and of course blood pressure is one more factor. तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस. प्रॉब्लम्स तो समझ गए, कुछ कंट्रोल का भी मेथड होगा. तो कंजर्वेशन का मेथड क्या है अब वो समझते हैं. हाउ कैन वी एक्चुअली अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे बताई गई हैं. सबसे पहले तो जैसे हम वाटर जो इतना सारा बर्बाद कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, अगर हम उस वाटर को रिसाइकल करना शुरू कर दें, क्योंकि कुछ साफ़ सफाई का काम हमेशा नेसेसरी नहीं करना होता है, कई बार वो टेम्परेचर सेट करना, कूल डाउन करना, इन सारी चीज़ों के लिए काम आता है. तो उस वाटर को डिस्पोज करना ज़रूरी नहीं है, आप उसको रीयूज़ कर सकते हो, आप उसको रिसाइकल कर सकते हो. So you can apply the 3 R's over there. Or plus of course just monitor the amount of water that is being consumed. Harvesting rain water to meet the water requirements. Rain water harvestment किया जाए. ठीक है. ट्रीट करना हॉट वाटर को एफ्लुएंस के साथ बिफोर रिलीजिंग इनटू द रिवर बिकॉज इट जस्ट अफेक्ट्स द लाइफ एक्वा लाइफ अ लॉट. पार्टिकुलेट मटेरियल जैसे कि आयरन का मटेरियल है, ये है वो है, पानी में भी डंप ना करें. दूसरा, एयर पोल्यूशन जब होता है, जब स्मोक निकलता है तो वो क्या होता है, फिल्टर आउट नहीं होता. छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकुलेट मटेरियल्स निकल जाते हैं, उसे हम इनहेल कर लेते हैं, वो हमारे ब्रीदिंग ट्रैक्ट को फिर फर्दर मोर डैमेज करते हैं. सो पार्टिकुलेट मटेरियल जो एयर में रिलीज़ किया जाता है दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स इन द फैक्ट्रीज. प्रॉपर फिल्ट्रेशन के साथ लंबी चिमनीज बनाई जा सकती हैं ताकि जो ब्रीदिंग एयर है वहाँ पे वो रिलीज़ ना हो, स्मोक बहुत ऊपर जा कर के रिलीज़ हो. इंडस्ट्रीज़ का कंस्ट्रक्शन जो है वो सिविलाइजेशन से बहुत दूर किया जाए कि इमीडिएट जो इम्पैक्ट आ भी रहा है वो तुरंत एक बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट ना करे, उनके पास ना पहुँचे. स्मोक जैसे मैंने बताया इन जनरल रिड्यूस किया जा सकता है. नॉर्मली कोल इस्तेमाल होता है जो ज़्यादा पोल्यूशन करता है, लेस इकोलॉजिकल फ्रेंडली होता है, ज़्यादा डस्ट, ज़्यादा हैवी स्मोक निकालता है. सो इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज. मशीनरी जो है इट कैन बी रीडिज़ाइंड टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइसेस इन जनरल. अभी भी क्या हो रहा है, पुरानी मशीनें यूज़ हो रही हैं, उससे स्मोक भी बुरा निकल रहा है, आवाज़ें भी निकल रही हैं, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है. तो अगर एक रिप्लेसमेंट किया जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा. NTPC ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इसमें, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने, जो कि एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया का. प्रोवाइड करता है ISO सर्टिफिकेशन अप टू 1401. इनका काम जो है व्हाट दे हैव मेड पॉसिबल इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, मिनिमाइजिंग द वेस्ट जनरेशन, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स, प्रॉपर ग्रीनरी क्रिएट करना ताकि जो अलग अलग पोल्यूशन हो रहे हैं वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो सके, एंड रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन. सो दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट दे हैव मेड. नाउ क्विकली समराइजिंग व्हाट वी हैव डन. Manufacturing is the production of goods in large quantities after processing raw materials into more valuable products. Industries जो manufacture करती हैं finished products को from primary materials और उसमें value add करती हैं, utility add करती हैं, उन्हें हम manufacturing industries कहते हैं. The manufacturing sector is considered the backbone of development. Factors which affect the industrial location are availability of raw materials, labor, capital, power, market and policies.
क्लासिफिकेशन की जाती है इंडस्ट्रीज़ की अलग अलग बेसिस पे. रॉ मटेरियल के बेसिस पे वी हैव एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड. Basis of role, you have the basic industries or the key industries and the consumer industries. Capital investment के basis पे we have large scale industries and small scale industries. Then on the basis, actually I'll hide myself so that you're able to look at the entire text. Then on the basis of ownership also we have distribution of the industries, which is your four kind of industries. Private है, public है, joint sector है and cooperative है. एंड फाइनली यू हैव ऑन द बेसिस ऑफ बल्क और वेट, जो कि हैवी रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड है या हल्का है, लाइट है, उस पर डिपेंड करता है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने पढ़ा. मिनरल में हमने एल्यूमिनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को देखा. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो कॉज करती है इंडस्ट्री वो है एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज. कंट्रोल करने के मेथड्स भी हमने डिस्कस कर लिए कि कैसे ग्रीन बेल्ट्स कर सकते हैं, वाटर को ट्रीट किया जा सकता है, स्मोक को फिल्टर आउट किया जा सकता है, लॉन्गर चिमनीज लगाई जा सकती हैं, इंडस्ट्रीज़ को दूर किया जा सकता है, वाटर का कंजम्पशन कम किया जा सकता है, उसे जो है थोड़ा सा रिसाइकल या रीयूज़ किया जा सकता है. एंड दिस इज़ हाउ वी कैन एक्चुअली मिनिमाइज द वाटर पोल्यूशन एंड रीयूटिलाइज द वाटर दैट इज़ बीइंग इन जनरल यूज्ड. और थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं, कंजर्व भी कर सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं जितना टोटल पानी अदरवाइज कंज्यूम हो रहा है. ठीक है. So guys, with this we have finished the chapter. I just want to quickly remind you that we are conducting a lot of live sessions on a daily basis for you. I will be doing a full day marathon जहाँ पे सुबह 2 बजे से मतलब दोपहर की 2 बजे से रात के 10 बजे तक मैं आपको पूरा मंडे को, which is I think 4th of मार्च को मैं आपको पूरा हिस्ट्री रिवाइज कराऊंगी. 5th ऑफ मार्च को 2 से 10 मैं आपको पूरा ज्योग्राफी रिवाइज कराऊंगी. 6 मार्च को मैं आपको 12 से 5 बजे तक फुल पॉलिटिकल साइंस रिवाइज कराऊंगी और 6 से 10 बजे तक मैं आपको पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज करवाऊंगी. एंड देन 7th यू हैव योर एग्जामिनेशन. आफ्टर एग्जामिनेशन 2-2:30 बजे के अराउंड हम पेपर डिस्कशन शुरू करेंगे जहाँ पे पूरा का पूरा पेपर डिस्कस किया जाएगा. एंड ऑल ऑफ दिस विल बी हैपनिंग ऑन द इम्बाइब ऐप एज वेल. So just make sure that you're not missing out on any of these. You are registered for this session. It's very very important because the learning is going to be very interactive, very fun. और पूरा syllabus कुछ नहीं भी पढ़ा है तो सिर्फ ये 3 दिन की पढ़ाई से ना आप बहुत स्कोर कर लोगे. 70-75% guaranteed. ठीक है. प्लस आपके पास अगर टाइम है, जैसे कि आप इंग्लिश का पेपर दे के आ रहे हो उसके बाद या संडे को, डू गो हैड टेक अ फुल सिलेबस टेस्ट. वी हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस पेपर्स एंड टेस्ट दैट यू शुड बी टेकिंग अप, विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड क्रिएट योर ओन अचीव जर्नी. यार सिंपल है. ठीक है. ऑल्सो अब कुछ ही दिन का फ्री मेहमान रह गया है इम्बाइब, तो जितना एक्सेस कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो उतना कर लो यूटिलाइजेशन. और इससे आपको पता भी होगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस. वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं. आपको पता है कि आप घर बैठे प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड इफ यू मूविंग टू 11th एंड 12th एंड ट्राइंग टू ऑप्ट फॉर साइंस, दिस इज द बेस्ट टूल दैट कैन हैपन टू यू. एंड इम्बाइब के ऐप पे तो हम भर भर के आपके लिए वीडियोस बना ही रहे हैं. डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द इम्बाइब लेंस. मैंने आपको लेंस मूवमेंट में दिखाया भी है कि हाउ वंडरफुली इट वर्क्स. Just in case if you have any other doubt that you want to get resolved, all you have to do is go on the Imbibe platform. यहाँ पे ask me a doubt का option आता है, उस पर click करते it will pop up a chat and redirect you to WhatsApp, wherein you can ask all your doubts and queries and get everything clarified in a wonderful manner and not be worried about that. Oh my God, अभी किससे पूछूँ, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? Just go ahead, ask your doubt, get it clarified and be satisfied with those answers. And if you have not already joined our Telegram channel, this is the QR code and that is the link that you see over there. I'll quickly also hide myself so that you can see the QR code. Please do go ahead and join it because all the important announcements, result के updates, ये सारी चीज़ें आएंगी. चाहिए हुआ तो बाद में छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. So with this, we have come to the end of the session. Thank you so much for being here. I'm really hoping you guys to see you in the marathon sessions. Do not forget to also let your friends know about it. And it will be a wonderful, full, thorough revision जो आपको बिल्कुल relax कर देगा. तो आपको कोई stress लेने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द. Till the next time, take good care of yourselves. Stay safe. I know you guys are going to rock your exam. All the best for your examinations. And
We'll meet soon. If you enjoyed the video, do not forget to hit the like button, share the video with your friends. Do tell me in the comment section what else do you need, what are you looking forward to. If I can accommodate along with the rest of the sessions, I'll definitely do it. Until the next time guys, all the very best for your examinations and your performance. Hasta la vista, bye bye. Take good care of yourselves. Stay tuned, stay subscribed and keep imbibing.